Assalamu students. Today I am going to start a topic, a continuation of the previous topic, acute inflammation. इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट जो तीन कंपोनेंट्स थे उसमें से दो कंपोनेंट्स हमने जो है वो पढ़ लिए थे कि हाउ द बेसिकली द कैलिबर ऑफ द वेसल इज इंक्रीज एंड द परमिबिलिटी ऑफ द वेसल आर इंक्रीज. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द acute inflammation is basically the activation of the phagocytes and the role of the phagocytes. What are phagocytes? These are the WBCs which have the ability to phagocytose or engulf the foreign agent inside of them. Clear? And the WBCs which can phagocyte have the ability of phagocytosis are the neutrophils and the monocytes. These are the two types of the cells which have the ability to phagocytose any foreign agent, which could be bacteria, which could be any fungus, which could be any dead cell or anything which is abnormal can be engulfed by these cells, and they basically remove the offending agent or anything which is causing the problem in the body. Therefore, the role of these phagocytes is very, very important. As you know, these WBCs, they are confined inside the vessel. They do not leave the vessel in a normal condition. Basically, let's suppose this is the vessel, clear? And these vessels, as you know, are basically lined by the endothelial cells. In endothelial cells, in between the endothelial cells, there is the gap between the cells. These gaps are not enough to allow the cell or to allow the WBCs to pass through them. Obviously, the gap is small and the cells are larger in size. How the cell and infection is present there? There is a bacteria which is basically causing problem in the body, causing the infection to the body. Now the gap is very small and the size of the phagocyte, either it is neutrophil or the monocyte, it is big. The cell cannot leave this space. Then how does it do this all process? This is a very complex process by which the ultimately these neutrophils or these phagocytes reach there. What is this process? It has got certain steps. मैं steps आपको एक ही करके पढ़ाऊंगा. What are the different steps by which ultimately neutrophils reach to the site called kill the bacteria and remove the dead cells or anything which is causing abnormality at that site. First step is basically the adhesion of the phagocytes or the WBC adhesion. The cell is in the circulation. Basically, there are two types of the cells. There are two types of the cells which are present in the vessel. One is in the circulating pool and other is in the marginating pool. दो तरह के पूल होते हैं सेल्स के लिए. खास तौर पर न्यूट्रोफिल्स दो तरह के पूल में होते हैं. एक होता है सर्कुलेटिंग पूल के अंदर. सर्कुलेटिंग पूल इज द पूल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स विच आर सर्कुलेटिंग इनसाइड द वेसल, ब्लड के साथ जो फ्लो कर रहा है. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पास जो है वेसल के साथ अटैच हुए हुए होते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिनेटिंग पूल. लेकिन दिस मार्जिनेटिंग पूल इज वेरी मिनिमम एज कंपेयर टू द सर्कुलेटिंग पूल. ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होते हैं. अब ऑब्वियसली कहीं पे अगर इन्फेक्शन हो गई है, द इन्फेक्टेड साइड वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स की जरूरत है, बहुत सारे फेगोसाइट की जरूरत है, वो वहाँ पे पहुँचे. तो क्या होता है बेसिकली एट द साइड where there is infection, वहाँ पे वेसल, मैंने आपको लास्ट में बताया था, there is basically the vasodilatation of the vessel. वेसल जो है वेजोडाइलेट करती हैं, ठीक है, और उनके जो एंडोथेलियल सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इन दो चीज़ों की वजह से क्या होता है, the gap in between the vessel, in between the endothelial cell, it is increased. जब ये gap increase हो जाता है तो this allows the fluid to goes out, protein to go out. Also it basically mixes the blood. नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो जो वेसल्स के अंदर है, इधर स्ट्रीम लाइन ब्लड फ्लो. स्ट्रीम लाइन ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि सेल्स जो हैं वो सेंटर में सर्कुलेट कर रहे हैं एंड द प्लाज्मा और द फ्लूइड इज इन द पेरिफेरी. तो आपके पास नॉर्मली वेसल्स के जो साथ जो इंटरेक्शन हो रही होती है दैट इज ऑफ द फ्लूइड.
क्लियर, सेल सेंट्रिक के अंदर है, लेकिन जैसे ही सेल का कैलिबर बढ़ता है, एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे शेकिंग हो जाती है, पूरा का पूरा ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है, जिसके अंदर अब वो जो लेयर्स है, सेंटर में सेल्स हैं, पेरिफेरी में फ्लूइड है, वो खत्म हो जाती है और सेल्स मिक्सअप हो जाती हैं, सेल्स अब जो है पूरे पूरे ब्लड के अंदर मिक्सअप हुए में, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स के साथ जाके करीब आ जाते हैं। When they come close to the endothelial cells, basically the endothelial cells got activated, also the neutrophil also got activated। तो क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं सिलेक्टिन, व्हाट वी कॉल देम सिलेक्टिन। These selectin basically what they do, they basically are produced on the surface of the endothelial cells। ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? There are different cytokines which are produced here। वो मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी cytokines होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा what are how they are produced और what are the function of these cytokines। तो वो cytokines के इन्फ्लुएंस में एंडोथेलियल सेल्स अपने ऊपर कुछ रिसेप्टर्स बना लेते हैं, ठीक है, और ये रिसेप्टर्स जो हैं बेसिकली अटैच करते हैं विद द न्यूट्रोफिल्स, क्लियर, और इन थ्रू द इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन्स बेसिकली समझ लो वो दीज आर द हुक्स बाय व्हिच दो रिसेप्टर्स आर अटैच्ड। ये इंटेग्रिन न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रोड्यूस हुए, सिलेक्टिन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर प्रोड्यूस हुए। अब इससे क्या हुआ, अब अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल इज got attached with the endothelial cells। अब इसको कहते हैं एडहेजन हो गई है। अब these neutrophils are basically attached with endothelial cells। अब ये इधर उधर नहीं होगा, ये यहाँ पे एडहेजन इसकी हो गई, ये चिपक गया, ये जुड़ गया इसके साथ, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द एडहेजन। जब ये एडहेजन हो जाएगी तो अब ब्लड का फ्लो होता रहेगा, यहाँ से मूव नहीं करेगा, बिकॉज इट हैज टू पास आउट थ्रू दिस स्मॉल गैप। तो अब इसे गैप से बाहर निकलने के लिए इसको जो है वहां पे पहले तो एडहेजन होगी ना, उसके बाद आगे चलेगा। एडहेजन के बाद क्या होता है, सेकंड प्रोसेस इज द रोलिंग। रोलिंग क्या होती है कि अब ये सेल इस एंडोथेलियल सेल के ऊपर रोल करता करता अल्टीमेटली उसने इस गैप जंक्शन तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे और इंटेग्रिन आते हैं, जहां से भी फिर इंटेग्रिन इसका जो है वो रिमूव होता है और इसके साथ आके वो जुड़ जाता है। यही न्यूट्रोफिल पिछले वाले सिलेक्टिन से रिमूव हुआ, क्लियर, इट रिमूव फ्रॉम द प्रीवियस सिलेक्टिन, उसके अगले सिलेक्टिन भी प्रोड्यूस हुए थे अगले एंडोथेलियल सेल पे, वहां पे जो प्रोड्यूस हुए थे वो वहां पे आके लगा और इस तरह से सेल रोल किया, ये यहां से रोल करके न्यूट्रोफिल जो है इस पॉइंट के ऊपर आ गया, क्लियर। दिस प्रोसेस कॉल्ड द रोलिंग। बेसिकली ये जो इंटरेक्शन है इंटेग्रिन का और सिलेक्टिन का, दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, ये वीक बॉन्ड होता है, लेकिन दिस अलाउज द न्यूट्रोफिल्स टू एडहेयर विद द एंडोथेलियल सेल, क्लियर। लेकिन वो जब चाहे वो बॉन्ड को तोड़ सकता है, वो सेल फिर आगे देखते हैं कि आगे सिलेक्टिन बन गए तो वो उस बॉन्ड को तोड़ता है और अगले वाले सिलेक्टिन के साथ जाके लग जाता है और अल्टीमेटली वो रोल करता हुआ आगे आ जाता है। जब वो रोल करता हुआ आगे आ जाता है, नाउ इट हैज गॉट फिक्स्ड इटसेल्फ टू दैट साइड, क्लियर। उस गैप के दरमियान में, द गैप व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू एंडोथेलियल सेल्स, वहां पे वो अपने आप को फिक्स कर लेता है। फिक्स करने के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, जैसे वी कैम है, आई कैम है, vascular, basically these are the vascular endothelial adhesion molecule, VCAM, VEAM, ठीक है, IEAM, and intracellular adhesion molecule और vascular endothelial adhesion molecule, ये आप इसके साथ फिक्स कर देते हैं। पहले तो वो आप सेपरेट हो सकता था, इंटेग्रिन सिलेक्टिन दूसरे से अलग हो सकते थे, लेकिन ये वीकैम बेसिकली एंडोथेलियल सेल पे प्रोड्यूस होता है और ये पक्का इसको फिक्स की तौर पे इसको यहाँ पे एडहेयर कर देता है। अभी यहाँ पे रोल नहीं कर सकता, इट इज नॉट गॉट फिक्स्ड टू दैट साइड, बिल्कुल गैप जंक्शन के ऊपर ये आप फिक्स हो गए। नाउ इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम दैट साइड, the space is small, the size is a bigger size। तो इससे बेसिकली यहाँ से भी प्रोसेस होता है immigration। Immigration basically is the exit of the neutrophil or monocyte
फ्रॉम द वेसल आउट टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, वेसल के अंदर मौजूद था, अब इसने बाहर जाना है, इसने एग्जिट करना है, तो ये एग्जिट जो करेगा इट एग्जिट बाय द प्रोसेस ऑफ द इमिग्रेशन। क्या होता है इसमें, न्यूट्रोफिल जो है पहले अपनी छोटी छोटी सूडोपोड्स बनाता है, ये सूडोपोड के जरिए से वो जो है उसे एग्जिट करता है। ये गैप था, ये गैप था। अब इसमें से न्यूट्रोफिल ने सूडोपोड बनाया जिससे एमीबॉइड मूवमेंट होती है अमीबा की, उसी तरीके से वो सूडोपोड्स बना के मूव कर रहा होता है। इसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स की जो है साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन निकलती है, वो थोड़े से गैप से अंदर जाती है, ठीक है, पीछे से दोबारा वो पुश करता है, पुश फ्रॉम द बिहाइंड, थोड़ा सा सेल और आगे जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो सूडोपोड की कंट्रैक्शन के साथ जो है ना अल्टीमेटली जो है वो न्यूट्रोफिल एग्जिट हो जाता है थ्रू द स्मॉल गैप। आम वैसे नॉर्मली सेल जो है कैन नॉट एग्जिट, अगर पूरे के पूरे सेल को वहां से निकलना पड़े उस छोटे गैप से, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सेल टू एग्जिट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो क्या करेगा, वो सूडोपोड्स बनाएगा, थोड़ी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन बनेगी, एक्सटेंशन क्या करेगी, वो थोड़ी सी बाहर जाएगी, पीछे एक और पुश आएगा, एक और एक्सटेंशन बनेगी, और करते 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 अल्टीमेटली जो है वो सारा का सारा उसमें से उस स्मॉल गैप में से एग्जिट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन। क्लियर। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल कुछ मूवमेंट्स होती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूट्रोफिल आर वेरी स्पेशल, बेसिकली दे पुशेस द साइटोप्लाज्म the membrane towards the space, और वो आहिस्ता आहिस्ता इट एग्जिट फ्रॉम द वेसल वॉल। जब वेसल से वो बाहर आ जाता है, नाउ द थर्ड फोर्थ स्टेज इज द कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस बेसिकली इज द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल टुवर्ड्स द इन्फेक्टेड साइट। ऑब्वियसली वेसल से ये बाहर आ गया, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जाना किधर है, वेयर इज द इन्फेक्शन। क्लियर। वो जब तक उसको पता नहीं होगा इन्फेक्शन किधर है, ऑब्वियसली वो बाहर तो निकल के कुछ भी नहीं कर सकता। तो द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स टू रीच टू एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट केमिकल्स which are produced at the site of infection। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, they are called the chemo attractants। कीमो अट्रैक्टेंट्स बेसिकली अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल फिर खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाता है और अल्टीमेटली रीच एट द साइट ऑफ दैट प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम इज देयर। वो इन्फेक्शन भी हो सकती है, वो कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, वो वहाँ पे किसी किस्म की इंजरी भी हो सकती है, अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल इस तरीके से वहाँ पे पहुँचते हैं। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं टू रीच द टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और द प्रॉब्लम। First is the bacterial products। Bacterial products basically जब बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, इट्स ऑल्सो शेड सम ऑफ इट्स एंटीजेंस फ्रॉम दैट साइड। आपने कुछ ना कुछ एंटीजेंस को शेड कर रहा होता है, कुछ मेम्ब्रेन उसकी लॉस हो रही होती है, तो वो जो है वो ग्रेडियंट वो बेसिकली कीमो अट्रैक्टेड बन जाते हैं। न्यूट्रोफिल उसको जो है जज करने लग जाता है, एसेस करने लग जाता है न्यूट्रोफिल। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा C5 है, C5A basically is a complement protein। It also helps the neutrophils to reach towards the site of the infection। ये यहाँ पे मैंने आपको जब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पे पहुँच जाती है, पहले ही प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पे पहुँची होती है, एंटीबॉडीज वहाँ पे पहुँची होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जब वो एक्टिवेट होती हैं तो वो मुख्तलिफ रोल है उनका, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है डिफेंस में जो रोल प्ले करती हैं। आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C5A। C5A भी बेसिकली कीमो अट्रैक्टेड के तौर पर रोल प्ले करती है, न्यूट्रोफिल उसको जो है उसी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट ल्यूकोट्राइन्स ल्यूकोट्राइन 4 जो है इट इज ऑल्सो इज अ कीमो अट्रैक्टेंट। ये हेल्प करता है न्यूट्रोफिल्स को कि वो वहाँ पे पहुँचने शुरू कर देते हैं, जो ही इसको सेंस कर लेते हैं, इसको वो उसकी खुशबू आ जाती है कि यहाँ पे केमिकल पड़े हैं, मैंने वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ हुआ है। तो ये वहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है इन इंग्रेडिएंट्स के जरिए बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स C5A ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, उनको सेंस करता हुआ, उसको स्मेल करता हुआ अल्टीमेटली वो साइट पे पहुँच जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन होती है। अब वो वहाँ पे पहुँच तो गया, लेकिन हाउ द न्यूट्रोफिल और द मोनोसाइट इज गोइंग टू सेंस कौन सा सेल प्रॉब्लमेटिक है, कौन सा बैक्टीरिया एबनॉर्मल है, तो वो बेसिकली करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन।
Opsonization basically is a process by which the targeted cell or the target bacteria become tasty for the neutrophils to engulf. अब उसको कैसे पता चलेगा कि इसी सेल को या इसी एबनॉर्मल जगह को, इसी एबनॉर्मल बैक्टीरिया को या वायरस को मैंने या फिर इसके फंगस को मैंने इसको बेसिकली इंगल्फ करना है, फेगोसाइटोज करना है। तो क्या होता है, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो उनमें ऑप्सोनाइजेशन होती है डिफरेंट केमिकल्स की। वो केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को कि उसको इंगल्फ करे। ये मिसाल के तौर पे जो इम्पोर्टेंट जो केमिकल्स हैं आर द C3 कॉम्प्लीमेंट है, ये एंटीबॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट, these are the two very important chemoattractant, very important option in basically which engulf, which cover the targeted cell, और वो भी न्यूट्रोफिल को हेल्प करता है कि वो उनको जाके जो है अटैच करें। ठीक, तो इस इम्पोर्टेंट आपके पास C3 है, कॉम्प्लीमेंट एजेंट है। कॉम्प्लीमेंट का C3 जो है, C3A खास तौर पे C3B भी कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एंटीबॉडीज जो हैं वो जाके बैक्टीरिया के ऊपर ऐड ऑन हो जाती हैं। एंटीबॉडीज कहाँ से आई थी, प्लाज्मा के जरिए, वो पहले ही पहुंच चुकी थी। वो कैसे बनी थी बॉडी के अंदर, जब पहले बैक्टीरिया आया था तो पहले बैक्टीरिया आने की वजह से क्या हुआ था कि एंटीबॉडीज जो है पहले के प्रोड्यूस थी। तो अब एंटीबॉडीज आपको पता है कि वो एंटीजन से पहले से इम्यून थी, तो दे गो टुवर्ड्स दैट एंटीजन अटैच विद द एंटीजन। जब एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स पहुँचते हैं, उनको फेगोसाइटोज करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस है जिसके जरिए से अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल रिकॉग्नाइज द टारगेट which cell or which bacteria has to be engulfed. Clear? Now the final process is the killing, phagocytosis and the killing. Once the neutrophil recognize कि इस सेल को मैंने जो है टारगेट करना है, clear, it attaches itself with that target bacteria or the target cell. नाउ क्यों किया, बिकॉज उसके ऊपर कुछ ऐसे जो है ऑप्शनेंस लगे हुए थे, उस केमिकल्स लगे थे जिसको उसने एट्रैक्टेंट बना दिया। ठीक है, और वो फेगोसाइटोज कर दिया। अब फेगोसाइटोज कैसे करते हैं, जिस तरह पहले इट प्रोड्यूसेस द सूडोपोड्स, ये सिमिलरली द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस अ सूडोपोड टुवर्ड दैट साइड, एक्सटेंशन बनती है सेल मेम्ब्रेन की। लिए और वो अल्टीमेटली जो है उसमें कवर अप करती है और इनसाइड एक वैक्यूल की फॉर्म में ले जाती है। ठीक है, अब किसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, अपनी ही सेल मेम्ब्रेन थी, इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन बेसिकली रैप अराउंड दैट बैक्टीरिया, क्लियर, कवर द बैक्टीरिया एज अ होल और अल्टीमेटली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द मेन मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली पुशेस दैट वैक्यूल इनसाइड ऑफ द सेल। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, वो उसको ने पुश कर दिया न्यूट्रोफिल के अंदर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस। और ये किस तरह से फेगोसाइटोसिस हुआ, आपके पास एक मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बनी, उसने दोनों तरफ से कवर किया, जब कवर किया और कंप्लीट तौर पे उसको इंसर्कल कर लिया तो वो एक वैक्यूल एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन गया, उसको उसने साइटोप्लाज्म के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, और मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया। अब वो एक बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के अंदर ब्लॉक हो गया, मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आ गया और वो क्या हुआ, फेगोसाइटोज हो गया, इनगल्फ होकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। Now it goes to the cytoplasm. Ultimately, now the final step is the killing. Neutrophils has got a lot of enzymes which has the ability to kill the bacteria. ठीक है, इसमें दो तरह से होता है, कुछ processes होते हैं which are produced by the oxygen, which are oxygen dependent, some are oxygen independent. Clear? It has got a variety of enzymes which has the ability to kill anything which comes in contact. Clear? वो आमतौर पे जो है लाइसोसोम एंजाइम्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। लाइसोसोम जो है आर द मेम्ब्रेन बाउंड organelles inside of the neutrophil which has got very different varieties of the enzymes. इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, they produces they kill the bacteria or kill the cell by two mechanism. One is the oxygen dependent, जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन से अल्टीमेटली सुपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। क्लियर, वो किल करता है डायरेक्टली तौर पे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को, उसकी पर ऑक्सीडेशन करता है और मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होती है तो बैक्टीरिया ओवरऑल उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से सिमिलरली इट हैज़ ऑल्सो गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग द माइलोपेरोक्सीडेज which kills the basically
release also the different antigens of the cell membrane, and then ultimately the cell or membrane of the bacteria when is died is killed, ultimately bacteria is also killed. ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया की है उसकी किलिंग हो जाती है. When all the enzymes of the neutrophils are being utilized, क्लियर, वो जब यूटिलाइज हो चुके होते हैं तो द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस स्टार्ट्स टू अकर एंड अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल आल्सो डज सुसाइड. क्लियर, वहाँ पे वो सुसाइड कर लेता है और अल्टीमेटली अपना रोल प्ले करके उस बैक्टीरिया को किल करके खुद भी अपने आप को ख़त्म कर लेता है, बिकॉज कि अब उसके अंदर जितने भी उसका जो मकसद था उसने वो अचीव कर लिया. It has utilized all its enzymes to kill the bacteria and ultimately the bacteria are killed. तो उसका मकसद पूरा हो गया. क्लियर, अल्टीमेटली जो है ये इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स उस जगह पे आते रहते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करते रहते हैं एंड टिल द इन्फेक्शन इज रिजॉल्व. इफ द इन्फेक्शन इज नॉट रिजॉल्व, अल्टीमेटली the neutrophils, these neutrophils are replaced by the monocytes. न्यूट्रोफिल्स के बाद मोनोसाइट्स फिर वहाँ पे जाना शुरू करते हैं. क्लियर, आफ्टर 1 वीक to 2 वीक न्यूट्रोफिल्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं. जब इन्फेक्शन नहीं ख़त्म होती, अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, क्लियर, या कोई ऐसा ऑफेंडिंग एजेंट है जो कि न्यूट्रोफिल्स की को यानी कि उसकी सलाहियत से आगे गया है, तो फिर वो अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल्स आना रुक जाते हैं वहाँ पे एंड दे आर टेकन ओवर बाय द मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स वहाँ पे आते हैं, वो अपना यही रोल प्ले करते हैं. फिर मोनोसाइट्स के अंदर और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हीलिंग का प्रोसेस, फाइब्रोसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और अल्टीमेटली वो एरिया जहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा था उसको फिर अपने तरीके से वो हैंडल करते हैं. दैट इज़ अदर टॉपिक ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स थे. आज मैंने आपको उसमें से तीसरा स्टेप बता दिया, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस विद यू द डिफरेंट रोल ऑफ द कीमोकाइंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. आई होप कि आपके पास ये टॉपिक समझ आ गया होगा. इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू.